Hello everyone, this is Dr. Natwar Singh Rathod. I am working as an assistant professor in KITE group of institution. So this is the flow diagram of a classification of transducer. That means based on different principle we can classify our transducer. Like on the principle we can classify like capacitive, inductive and resistive type of transducer. Then we have active and passive transducer, primary and secondary, analog and digital transducer, then finally transducer and inverse transducer. So one by one we will see that फर्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, दैट मीन्स किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, आइदर वो रेजिस्टिव प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर. अगर वो आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, दैट मीन्स इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो उसे बोलेंगे आप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. एंड फाइनली कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, दैट मीन्स चेंज इन कैपेसिटेंस अगर आपको मिल रहा हो तो उसको आप कैपेसिटिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर बोलोगे. So first, a resistant type of transducer, that means a resistant changes on account of the measurement. That means जो आपने input side पे जो measurement है, input side में है, जो भी आपकी measurement है, and this is the transducer. Which type of? A resistive type of transducer. Then at the output side we are getting the output in the form of either voltage or current, that is electrical quantity. Then that is called as a resistive type of transducer. Change in resistance, आपका जैसे जैसे change in resistance मिलेगा, accordingly your voltage or current will be changed. The example of the resistive type of transducer like thermocouple, strain gauge, potentiometer, these are some of the transducer in which the change of a resistance is occur. Like in the thermocouple, if you the temperature, when we vary the temperature, accordingly a resistance is varies, and when resistance is varies, then finally your voltage is varied. Similarly, strain gauge, potentiometer is also kind of a resistive type of transducer. At the input side we are getting the fixed supply, that means suppose here we are giving the input voltage E1, and then there is a resistance, and here the slide wire is there. Okay, this is the slide wire, that means wiper. With the help of wiper we can change the resistance. This is the total resistance, और जहाँ पे आपका स्लाइडर सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने इसको फिक्स कर दिया है, तो ये आपका जो चेंज मिलेगा, दैट चेंज इन resistance will directly proportional to the output voltage E naught. So that is the type of resistive transducer. So we will see the detail of the potential transmitter, that means we are using this potential transformer transducer in the case of displacement, when we are measuring the displacement. Next is inductive type of transducer. So some of the criteria from which we can get the inductive type of transducer, first is the when we vary any self inductance of coil, then the change in inductance will occur, and that is called as the inductive type of transducer. When we change the mutual inductance, then that is also called as the inductive transducer. Production of eddy current. So these are the some of the three factors on which inductive transducer is based. The example is LVDT, that means linear variable differential transformer. RVDT, that means rotational variable differential transformer, synchros, resolver. These are the some of the transducer which are based on the principle of what? Inductive transducer. यहाँ पे आपको change in inductance मिलेगा, और change in inductance can be done with the help of either change in self inductance, either change in mutual inductance, or the production of eddy current in the coil. Next is a capacitive transducer. तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में क्या बात होता है आपके पास में? कैपेसिटिव चेंजेस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. जो आपका कैपेसिटर रहता है स्ट्रक्चर आपका, दीज आर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड द कैपेसिटेंस इज गिवन इज एप्सिलॉन ए ओवर डी. तो चेंज इन कैपेसिटेंस, दैट मीन्स यू कैन चेंज आइदर द एरिया ऑफ द प्लेट्स, the distance between the plates, or the dielectric constant between the plates. So these are the three factors on which the change in capacitance depends. So on the basis of these criteria, the capacitive transducer work. The example of the capacitive transducer is like variable capacitance transducer. So these are the three
criteria or principle on which the classification is done, either it is a resistive type of or inductive or capacitive type of transducer. So, next is active and passive type of transducer. So, as the name suggests, active means these are self generated transducer, that means they do not require any external source of power to activate this type of transducer, like in the case of thermocouple, photodiode, piezoelectric ट्रांसड्यूसर. तो इन ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, जैसे ही आपका कोई फिजिकल या फिर कोई डिफॉर्मेशन होता है, लाइक इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, तो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या हो रहा है आपका, जैसे ही कोई आपका फिजिकल डिफॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वोल्टेज. तो यहाँ पर उसको एक्टिवेट करने के लिए, ट्रांसड्यूसर को एक्टिवेट करने के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइक फोटोडायोड, जो पीवी सेल आपने देखे होंगे, यहाँ पे क्या आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, दैट सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो यहाँ पे भी आपको उसको सोलर पैनल को एक्टिवेट करने के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, जस्ट दीज आर द rays which are coming from the sun and that is converted into any electrical quantity. So, this is a example of active transducers. तो जितने भी आपके ट्रांसड्यूसर जिसमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको आप एक्टिव ट्रांसड्यूसर की फॉर्म में क्लासीफाई करोगे. नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसड्यूसर, दैट मीन्स टू एक्टिवेट और टू यूज दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर we require the external source of energy to excite the signal. That means अगर आपने इनपुट क्वांटिटी में या फिर इनपुट में आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दी है तो ये आपके वर्क नहीं करेंगे. सो दिस रिक्वायर द एक्सटर्नल पावर कॉल्ड एज ए एक्साइटेशन सिग्नल सेंसर मॉडिफाइड एक्साइटेशन सिग्नल टू प्रोवाइड द आउटपुट. तो जैसे जैसे आप इनपुट में क्वांटिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को चेंज करते हो तो आउटपुट में आपको corresponding signal मिलता है. एग्जाम्पल लाइक थर्मिस्टर, रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. सो दीज ऑल आर पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर. दैट मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसमें इनपुट्स में कुछ सप्लाई नहीं करते हैं. चेंज इन कैपेसिटेंस आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप इनपुट पे कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सप्लाई नहीं करते हैं. सिमिलरली इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में भी आपको जब तक चेंज नहीं मिलेगा जब तक आप एक इनपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को सप्लाई करते हो. वन मोर एग्जांपल लाइक एलवीडीटी. एलवीडीटी आप में इसमें भी आपका ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर को एक्टिवेट करने के लिए आपको एसी सोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर को भी आपको एक्टिवेट करने के लिए इनपुट पे आपको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेंगे. सो एक्टिव ट्रांसड्यूसर दैट मीन्स that are self generated, don't require any external source of energy. Passive transducer, they require the external source of energy, otherwise they will not work. Next classification is primary and secondary transducer. So primary transducer, that means just we can call sensor are our primary transducer. That means first at the input side we are giving any physical quantity and that is changed into another physical quantity or some other quantity an energy form, but that is not electrical in nature. So that is the primary transducer. Then secondary transducer is the device which convert that physical quantity into final electrical quantity. So like example of a pressure measurement using the Bourdon tube and LVDT. So we want to measure pressure using Bourdon tube and LVDT, then here Bourdon tube is acting as the primary transducer and LVDT is acting as the secondary transducer. Let's see, suppose this is the Bourdon tube and here there is a pulley arrangement
So here we are giving the supply voltage, input voltage. So this is the transformer. As we can see, these are the primary winding and these are the secondary winding, and this is the चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो प्रेशर के जैसे ही आपको यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो इनपुट क्या है आपके पास में, प्रेशर. बॉर्डन ट्यूब, ये आपका क्या है, बॉर्डन ट्यूब. तो इनपुट में आपके पास प्रेशर है. जैसे ये बॉर्डन ट्यूब को आप यहाँ पे बॉर्डन ट्यूब विल डिस्प्लेस दिस सेक्शन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर देगा x. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. और ये डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ पे कनेक्टेड है, सेकेंडरी ये ट्रांसड्यूसर दैट इज LVDT के साथ में कनेक्टेड है. और LVDT क्या करता है, LVDT इज द ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट दैट डिस्प्लेसमेंट इनटू द वोल्टेज. सो अल्टीमेटली आप क्या मेजर कर रहे हो, प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ voltage, pressure in the form of voltage, but it is not directly converted. First that pressure is converted into the displacement, then the displacement is finally converted into the voltage with the help of LVDT. So here the pressure measurement is done using this Borden tube and converted into the another physical term, that is the displacement, with the help of this Borden tube. And finally the LVDT is the device that is known as the secondary transducer, which converts that displacement into the voltage. Then this type of device is known as the secondary transducer. And primary transducer, that means just sensor one quantity to another quantity, that is first sensor, or we can say primary transducer. And secondary transducer are the real transducer which converts final output as the electrical quantity. Next is inverse transducer and transducer. Simple transducer we know, as we know that, which convert any non-electrical quantity into the final electrical quantity, and inverse is the reverse process. That means at the input side we have the electrical supply or electrical energy, that is the inverse transducer. तो इनपुट पे आपके पास में इलेक्ट्रिकल होगा और आउटपुट में आपके पास में नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलेगी. आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. देन दैट इज नॉन एज द इनवर्स ट्रांसड्यूसर. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनवर्स ट्रांसड्यूसर इज द पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जहां पे क्या हो रहा है आपके पास में एक क्रिस्टल है, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है. और जैसे ही आप कोई भी फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो यहाँ पे क्रिस्टल में, देन द एनर्जी दैट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज, रेस्पेक्टिव वोल्टेज. दैट मीन्स non electrical quantity is converted into the electrical quantity. Then that device is known as the inverse transducer. But it is also the example of transducer. ये ट्रांसड्यूसर का भी एग्जाम्पल है. इसमें दोनों प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है. अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी है और आपको आउटपुट में डिफॉर्मेशन मिलता है, दैट मीन्स आउटपुट में फिजिकल नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलती है, तब आप उसको इन्वर्स ट्रांसड्यूसर बोलोगे. और अगर आप इनपुट पे डिस्प्लेसमेंट या फोर्स दे रहे हो और दैट इज कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज, देन दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल ट्रांसड्यूसर. सो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which can be used as a transducer as well as inverse transducer. Next, analog and digital type of transducer. Analog means when at the input side any signal is there, and final at the output side when we are getting the output as the continuous signal of time, then such devices are known as the analog devices or analog transducer. Example like your LVDT, thermocouple, these are the some of the example of analog type of transducer. And digital type of transducer, that means we are getting the output in the form of pulses. When we are getting the output in the form of this type of pulse, like, then the transducer will be digital in nature. And when we are getting the output in the continuous, then that is the analog type of transducer. So nowadays
आजकल हम लोग डिजिटल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर यूज़ करें, दैट मीन्स अगर आपका फाइनल आउटपुट अगर आपके पास में डिजिटल नहीं भी आ रहा, आपके पास में कंटिन्यूस सिग्नल है, तो आप फर्दर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से दैट कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. बट डायरेक्ट एग्जांपल अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसड्यूसर, देन वी कॉल फोटो सेल्स. फोटो सेल्स जो आपको मिल रही है उनमें आउटपुट आपको पल्सेस की फॉर्म में मिलता है. रेक्टिफायर्स में भी आपको आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस लाइक योर हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे आपको आउटपुट कितना मिलता है, आपको पल्सेस की फॉर्म में आउटपुट मिल रहा है. सो this is the another classification, that is the we can classify our transducer either it is in the analog or digital form. Next, selecting any transducer. So some factors on which it depends that why we are choosing any particular type of transducer, what are the factor on which it depends, like the physical quantity which is to be measured. So different type of displacement, force, प्रेशर, जिस भी क्वांटिटी, जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करनी है, सो उस क्वांटिटी पे आपको डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको ट्रांसड्यूसर यूज़ करना है. तो ये आपका इनपुट क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. अगर आपको फोर्स मेजरमेंट करना है तो फोर्स कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ LVDT, दैट इज द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से यू कैन मेजर द डिस्प्लेसमेंट. You can also measure the displacement with the help of potentiometer transformer. तो ये आपका डिपेंड करेगा कि जैसे LVDT आपका कॉस्टलियर है या फिर पोटेंशियोमीटर, बिकॉज इट इज़ इजीली अवेलेबल. पोटेंशियोमीटर आपका लेबोरेटरीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, इट इज़ इजीली अवेलेबल, बट LVDT समवॉट कॉस्टली देन द दिस LVDT type of transducer. Next, the factor is which ट्रांसड्यूसर प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू मेजर दिस क्वांटिटी. तो प्रिंसिपल क्या हो गया आपके, प्रिंसिपल इज आइदर इट इज रेजिस्टिव या फिर आपके पास में इंडक्टिव प्रिंसिपल है या फिर कैपेसिटिव. सो दीज आर द प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल आपका कि कौन सा आपको ट्रांसड्यूसर यूज़ करना है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. तो ये भी ट्रांसड्यूसर आपका डिपेंड करेगा. सेलेक्टिंग फैक्टर है आपका कौन सा ट्रांसड्यूसर, चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए आपको, चेंज इन इंडक्टेंस चाहिए या फिर चेंज इन कैपेसिटेंस चाहिए. नेक्स्ट क्राइटेरिया है द एक्यूरेसी. सो क्या एक्यूरेसी आपको चाहिए, व्हाट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजरेंट. तो वी रिक्वायर हाई एक्यूरेसी, जो इजीली सबको हाई एक्यूरेसी के साथ में आपको आउटपुट मिलना चाहिए. तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा. फंडामेंटल ट्रांसड्यूसर पैरामीटर्स, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, फंडामेंटल नेचर क्या है आपका, कहाँ पे एनवायरमेंटल फिजिकल कंडीशन क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, दैट मीन्स आपको इंडस्ट्री में यूज़ करना है, लेबोरेटरीज में यूज़ करना है या फिर सराउंडिंग उसकी कैसी है, दैट ऑल्सो डिपेंडिंग फैक्टर ऑन द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसड्यूसर. द कंपैटिबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद द ट्रांसड्यूसर. तो ट्रांसड्यूसर में जो साथ में आपके इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, लाइक आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए, एटेन्यूएशन चाहिए, कुछ फिल्ट्रेशन चाहिए या फिर फाइनली ऐसी कोई सिग्नल प्रोसेसिंग करना है आपको, फर्दर सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करना है, कम्युनिकेशन में आपको यूज़ करना है. तो ये भी आपका डिपेंड करेगा कि ट्रांसड्यूसर के सिलेक्शन के अंदर. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द मेजरमेंट एरर. अगर आपका एरर आपको क्या करनी है, फाइनली मिनिमाइज करनी है, तो एरर शुड नॉट बी सो लार्ज दैट द मेजरमेंट इज नॉट accurate. So that is also another depending factor. The range should be large. तो जो भी आप ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं उसके रेंज आपकी सफिशिएंट रहनी चाहिए ताकि आप सारे कंप्लीट मेजरमेंट कैन बी डन विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर. अदरवाइज क्या होगा, अगर उस ट्रांसड्यूसर की वो रेंज ही नहीं है जहाँ पे आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, उतनी स्केलिंग ही नहीं है उसकी, तो आप वो मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे एंड यू विल रिक्वायर अनदर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर. सो ये स्विचिंग नहीं रहनी चाहिए. नेक्स्ट, द सेंसिटिविटी शुड बी हाई. दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर ऑन विच आवर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर डिपेंड्स. सो नाउ द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी जब आपके पास में ऑलरेडी न्यूमेटिक ट्रांसड्यूसर या फिर न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी. ऑब्वियसली
न्यूमेटिक जो इंस्ट्रूमेंट थे या फिर न्यूमेटिक ट्रांसड्यूसर जो आपके इनिशियल एराज में यूज़ करते थे, द इंस्ट्रूमेंट्स आर बल्की इन नेचर, कॉस्टलियर इन नेचर, या फिर आपको तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र द एनर्जी फॉर्म को ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत हार्ड था इन द केस ऑफ न्यूमेटिक, बट इट विल बी ईजियर विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, बिकॉज वोल्टेज और करंट को आप इजीली फ्लो करा सकते हो, आप इजीली ट्रांसमिट कर सकते हो। और नाउअडेज जो वोल्टेज और करंट है उसको फर्दर प्रोसेस करके आप डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। लाइक वोल्टेज या करंट आपका, लाइक करंट में बात करता हूँ तो लाइक 4 to 20 मिली एम्पियर करंट जनरली जो आउटपुट डिवाइसेस में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। सो व्हेन दिस एनालॉग फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म, दैट मीन्स डिजिटल फॉर्म किस में रहता है, इधर 0 और 1। तो 0 अगर 4 एम्पियर है तो दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज अ 0, एंड 20 मिली एम्पियर है दैट सिग्नल इज 1। अगर तो आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया अदर 0 और 1 फॉर्म में, सो दैट इज द डिजिटल फॉर्म ऑफ दैट ट्रांसड्यूसर। तो आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा, डिजिटल में मिलेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। जो पुराने टाइम में जो आपके पास में अवेलेबल न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट थे वो बल्कियर थे, या फिर मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट थे वो बल्कियर थे, कॉस्टली उनकी हाई थी। So these are the some of the points, like low power requirement, then amplified output. So with the help of signal processing or signal condition you can amplify that output. The output can be easily used, transmitted or recorded and easily processed for the further measurement process. So these can be done with the help of electrical transducer, जो आपका इनिशियली न्यूमेटिक या फिर मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में पॉसिबल नहीं था, वो इजीली आपका विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर पॉसिबल है, क्योंकि फाइनली आपका कन्वर्ट किस में हो रहा है, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल। और मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में क्या होता था, वो आपका फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्जेशन होता था और वो रहता मैकेनिकल ही था। देन द मास इनर्शिया इफेक्ट्स आर मिनिमाइज, जो इनर्शिया इफेक्ट था that is minimized in the case of electrical. Then the data transmission easily converted and filtering and attenuations. So these are the some of the advantage, and disadvantage we can say that these are the costlier and electrical transducer. Some of the features like it depends on the nature of the electrical transducer we are using. So these are the advantage of transducer. So disadvantage of electrical transducer, that means up to now we have seen that what are the advantage of using the electrical transducer, जो आपको न्यूमेटिक या फिर प्रीवियस एरा में नहीं मिलती थी, वो आपकी सारी एडवांटेज विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में मिल रही है। देन देयर आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, लाइक समटाइम इट इज लेस रिलायबल देन द मैकेनिकल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। लेस रिलायबल दैट मीन्स एक्चुअल आपको अगर मैकेनिकल की फॉर्म में आउटपुट चाहिए तो वो कन्वर्ट होके आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रहा है, तो दैट सम हाउ अगर एक्यूरेसी आपकी हाई नहीं है तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा, और देयर शुड बी सम एरर इन दैट बिकॉज ऑफ एजिंग फैक्टर। एक एजिंग फैक्टर आपका आता है, जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट को रेगुलरली यूज़ कर रहे हो या फिर उसका टाइम ऑफ यूज़ अगर इंक्रीज कर जाता है तो एजिंग प्रॉब्लम अगर हो जाती है, और ड्रिफ्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर वाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में एक और आपके ड्रिफ्ट एरर्स रहती है, लाइक जीरो एरर या either drift error. These are the some of the errors, so that we can when we are using the electrical transducer, तो आपके मैकेनिकल उस केस में आपके बेटर थे। ऑल्सो द सेंसिंग एलिमेंट एंड द एसोसिएटेड सिग्नल processing circuitry are somewhat competitively and more expensive. Okay, so these are the advantage and disadvantage of electrical transducer. So in the next lecture we will proceed with the measurement of force displacement while using with the help of different transducers. Thank you all. Okay, thank you.